So these tours are crafted in a manner that it promotes the local craftsmen, local houses, and बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिक रीच से बाहर हैं उनको एक कंफर्टेबल पास थ्रू मिल जाता है. So the whole idea of these 3-hour experiential tours, which is different than the regular guided tour, is that it gives you a more story-driven technique, context behind the monument, context behind each structure, why that structure is there, why this particular area is there. What is the main idea of a specific community living in specific areas? कि तो उसका पीछे का आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा. व्हेन यू गेट द कॉन्टेक्स्ट आपको स्टोरी और ज़्यादा समझ में आने लगेगी. तो दैट इज़ समथिंग विच आई फिगर आउट इज़ अ मिसिंग गैप फॉर द इंडियंस टू एक्सप्लोर. एंड प्राइमरली हम लोगों ने ये एक्सपीरियंशियल टूर इंडियंस के लिए डिज़ाइन करे थे, बट नाउ अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स are coming and are want to opt in for that. So we are seeing the great spike in these kinds of tour. और ये सारी चीज़ें इट्स नॉट लाइक कि ओवर द नाइट बिल्ट हो जाए. इसको बनाने में तकरीबन 10 साल का वक्त लगा है. तो हालांकि टेलो सिटी का ऑपरेशन एक्टिवली हुए हुए 1 साल हुआ है, पर उसके पीछे 10 साल की रिसर्च है और बहुत सीनियर टीम है पीछे जो इन स्टोरीज़ को निकाल कर लेकर आती है. So you've got historians also? Yeah, we got historians, we got authors, we got subject matter expert, architect, art historian. So the team have a very good command over the context, over the stories and all. So you will not be getting anything out of the context or fabricated or it is not based on history. So you will get the reference of each and everything which we are narrating through these stories. So these are the very research-based experiential tours that we have curated in last 10 years. So we have almost more than 100 experiences to cater throughout the year. Also coming back to you talking about how community is involved. So community. You were telling me about how you've involved local people also as tour guides. Yeah. How is that happening? So generally, working with the local people is that the best thing is कि they know every nook and corner. They understand the criticality of the area and how to tackle the situation. और जब लोकल इन्वॉल्व होते हैं तो चांसेस हों वैसे कि कोई इनकन्वीनियंस हो जाए. सिंस ही इज़ अ लोकल तो उसको थोड़ा सा इजी एक्सेस मिलता है चीज़ों का और उसको मालूम है कि सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है. फॉर एग्जांपल कि अभी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन ओल्ड दिल्ली आर कई बार एक वो होता है कि जो लोकल बच्चे होते हैं वो बाहर जाके ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं. एंड उसमें अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि वो लीव देयर एजुकेशन इन द वेरी बिगिनिंग, मे बी फॉर सम रिलीजियस रीजन, फॉर जस्ट फॉर अ रेफरेंस विल बी मूविंग देयर. जस्ट फॉर अ रेफरेंस कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कुरान को मेमोराइज़ करते हैं. टू मेमोराइज इट दे लीव इट फॉर लाइक हाफिज़ कुरान जो होते हैं. तो वो पिछले 2-3 साल के लिए बिल्कुल ही वो एजुकेशन छोड़ देते हैं ये सारी चीज़ें. तो बट दे हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन बिकॉज it is not easy to memorize the whole religious book of any religion. Right. So and they are the one who are born and brought up there, so they have the finest knowledge of the area, its custom, its culture, and there are stories that apart from the books are passes down to us generation to generation. सीना बसीना चली आती हैं. तो they come up with those stories as well as a local. एंड प्लस उनको मेमोरी बहुत शार्प होती है. तो देन व्हेन दे रीड अबाउट इट अबाउट दोज स्टोरीज एंड ऑल, देन उनको एक एडिशनल नॉलेज हो जाती है अबाउट देयर एरिया. एक तो उनको कॉन्टेक्स्ट पता होता है चीज़ों का, उसका हिस्टोरिकल रेफरेंस पता लग जाता है. देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम अ वेरी गुड स्टोरी टेलर्स. एंड देन इट गिव्स देम अ लोकल, क्योंकि वो उनको कहीं छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है. अपने घर को जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. They get to interact with a lot of the foreigners coming from all over the world, finest of the finest brains with their own experiences. So एक पूरा personality grooming भी होता है उनका, and they are getting the work opportunities in their own home without going to any other place. And that is the model that we are trying to replicate throughout India, that
जितने भी लोकल्स हैं वो अपने लोकल एरियाज़ को ही एज अ एक्सपीरियंशियल टूर ऑफ़र करें. And you're also helping them in further studies. Further studies as well, that they are enrolling themselves, we are also enrolling themselves into motivating themselves to enroll themselves into the higher studies, ताकि वो discontinue ना हो. और and they also get the professional knowledge of these courses. So what's better than that? So एक personality में grooming बिल्कुल अलग आता है, revenue avenues में बिल्कुल different होता है, और घर के घर में ही रह के सारे काम मिल रहे हैं. उसके अलावा आपका ये भी है कि बहुत सारे आर्टिजन्स हैं, लोकल आर्टिजन्स हैं, कैलीग्राफर्स हैं, या फिर दरीज़-दोज़ी के आर्टिस्ट हैं. उनके वर्कशॉप्स के ऊपर विजिट्स होती हैं. दे ऑल्सो मेक सम सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल वर्कशॉप देयर, तो वो टीचिंग हो जाती हैं. पीपल गेट टू कनेक्ट विद देम. देन वी ऑल्सो गो टू द हाउसेज ऑफ द पीपल. सो अगर लाइक यू गेट टू टेस्ट द लोकल फूड. सो ये भी होता है. कुछ पोएटिक सिम्पोजियम हम लोग अरेंज करवा देते हैं. तो वो सारी चीज़ें जो हैं जिसमें कि हम लोकल्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, और एक लोकल इकनॉमी में ज़्यादा एवेन्यूज़ डेवलप हो रहे हैं टू मेक देयर आर्ट, मेक देयर हाउसेस, मेक देयर फूड, लाइक एक इंसेंटिव मिल रहा है उनको. एंड एक कल्चर दोबारा थ्राइव कर रहा है, एक इकोसिस्टम बन रहा है कल्चर का. सो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर कल्चरल एथोस, they are sustaining it. So it's a sustainable cultural tour model that we have come up with, and which we are trying to expand it, scale up in pan India, and maybe in next 10 years we have a global vision to expand. Right. Yeah. But going back to the past 10 years, Yeah. when you were trying to establish Tales of City, you did not immediately jump into it. You were working at Paytm first and then at Google. Paytm first, then at Google, then I started working as a consultant to a lot of government organization. So I was consulting a lot of event industry into culture sector. But I used to organize, when in my initial days, I used to organize these walks once in a month, twice in a month, whenever I have a time, or whenever the resources are available. Because curating this is a big hassle. कि सबको अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, सबको एक पॉइंट के ऊपर लाना और सबकी एक्सपेक्टेशंस को मीट भी करना. और इसमें आपको ज़िद्दी होना पड़ता है. मतलब अदरवाइज़ अगर आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे ये सारी चीज़ें, तो वो है. या फिर आप टिपिकल टूर गाइड कंपनी मॉडल में चले जाओगे तो आप इस मॉडल को डेवलप कर ही नहीं सकते. इफ़ वी वेंचर इनटू द टूर गाइड कंपनी मोड, then we can earn 10 times more what we are earning now. दो चार चीज़ों के ऊपर फोकस करा which is already there, उसी को replicate करा और वो कर दिया. But now we try to make sure that every experience should be different. People get to come again and again to experience these things. So we have customized option available. We have public model available for the local Delhi NCR audience. We have private walks available for international tourists, HNIs, and for the tourists visiting from the other cities. And mostly the locals are conducting it. So these are very promptly available. So 1 घंटे के 2 घंटे के डिफरेंस के ऊपर we can organize it, avail it. So ये सारी चीज़ें रहती हैं. और इवेंचुअली पहले मंथ में 1 बार या 2 बार करता था. फिर मंथ में हम लोगों ने वीकली 3 या 4 बार करना शुरू करा. नाउ वी आर डूइंग इट वीकली. और हमारा जो प्राइवेट वॉक्स है, ऑलमोस्ट डेली हमारे वॉक्स हो रहे हैं. So it's a mix and match of public walk model, it's a mix and match of private walk model, customized tour. We are also organizing the events, workshops, and also we have different vertical in our business model. So yeah, and which we are trying to put it on the automation eventually with the help of technology and all, which will take another year to build it. So we have our in-house technology, we have our in-house team, operational team. So when you say technology, how do you include technology? So there are, the technology will be the replica of me. Okay. So whatever the challenges that I have faced over the last 10 years, जो भी research रहा, ये सारी चीज़ें, the existing technology which is there in the industry, it is just working to a certain extent. It is not addressing all the issues. So that we are trying to address with the in-house technology that we have developed or developing over the period of time. So once it is publicly released, you will get to know more about it. Yeah. Interesting. Yeah. So where are we standing? I find the structure to be a little different. अभी हम लोग हैं धर्मपुरा मोहल्ले के अंदर. So धर्मपुरा में तकरीबन 8 जैन मंदिर हैं और सारे ही जैन मंदिर बहुत खूबसूरत हैं. और अभी हम लोग नए जैन मंदिर के पास खड़े हुए हैं. और नया जैन मंदिर लाला हरसुख राय, जो कि शाह आलम सेकंड की कोर्ट में इज़ वन ऑफ द नोबल
उन्होंने कमीशन करा था। और अंदर से बहुत खूबसूरत जैन मंदिर है। और आप देखोगे कि ये स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा आइडियल नहीं है। तो उसकी पीछे एक ख़ास बात होती थी कि आपको जो कम्प्लीटली स्क्वायर स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो कहीं से ऑक्टागनल होगा, इस तरीके से होगा, जस्ट टू मेक इट मोर सिक्योर। एंड एक गली दूसरी और इसके 2-3 दरवाजे होंगे कि अगर कहीं कभी अटैक हो रहा हो तो यू कैन पास टू द डिफरेंट डोर। So is it also as old as the place This itself? is built in 1850, so almost 175 year old temple. तो ये 1857 रिवॉल्ट से पहले का मंदिर And we है, call it new नया जैन मंदिर। Interesting. तो यहाँ तकरीबन 7 से 8 जैन मंदिर हैं। Okay. एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल एंटरप्राइज वी मेक श्योर कि हम ओवर क्राउड भी ना करें जगहों को, या ओवर एक्सपोज भी ना करें। So it is very important, otherwise you will overexpose one specific area and then फिर उसका and it has negative impact as well. So it is also important to keep a balance of things. तो ये पूरा पीछे मंदिर का एरिया है। Okay, वही हवेली है continuation. तो ये मंदिर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे मंदिर का ही एक टेंपल है। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, पीछे प्राइमरी स्कूल था और साथ में आपका धर्मशाला थी। तो दैट वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी रिलीजियस साइट, कि जो भी रिलीजियस साइट होगी उसके साथ में एक या तो मदरसा होगा, मस्जिद होगी तो मदरसा होगा, गुरुद्वारा होगा तो स्कूल होगा, पाठशाला होगी, मंदिर होगा तो पाठशाला होगी, साथ में मस्जिदों के साथ अक्सर सराय होती हैं, मंदिरों के साथ अक्सर धर्मशालाएँ होती हैं। क्योंकि उस ज़माने में बहुत ट्रैवलर्स अक्सर होते थे ना कि लोगों को अगर जाना है, रुकना है तो दे ऑलवेज लुक फॉर द टेम्पल और द मॉस्क टू स्टे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आसपास धर्मशाला मिल जाएगी या फिर सराय मिल जाएगी। तो अब इन सराय का क्या हाल है? अब ज़्यादातर दिल्ली के अंदर तो सराय, अब जैसे अरब की सराय हो गई या इस तरीके की चीज़ें हो गई जो वो नाम के लिए ही रह गई हैं। बट उस टाइम पे लोगों को मालूम होता था सराय कहाँ पर है, तो वो वहीं जाकर रुका करते थे। तो दैट वाज ऑलवेज अ स्टॉप फॉर देम। या फिर मुसाफिर खाने होते थे, धर्मशालाएँ होती थी और बहुत चीप कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल होते थे। सो पीपल वर, इफ़ एनी न्यू ट्रैवलर इज़ कमिंग टू द सिटी, वो रिलीजियस प्लेसेस को ढूंढते थे, मस्जिद को या मंदिर को। और पीछे उस दौर में एक रूल ये भी होता था कि यू आर नॉट अलाउड टू मेक योर हाउसेस अबव द टेम्पल और द मॉस्क, तो दैट शुड बी ऑन द ग्राउंड लेवल ओनली। तो पुराने मकानात या जब जितनी भी हवेलियाँ होती थी उनको आपका एक फ्लोर ही होता था कि अगर कोई विजिटर आ रहा है तो ही कैन जस्ट सिंपली सी एंड इट कैन यू नो ईजिली विजिबल। तो और गलियों को तंग बनाने का रीज़न भी ये होता था कि इन द टाइम ऑफ द अटैक दे कैन ईजीली काउंटर द आर्मी और अटैक को ओवर पावर कर पाते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, that's it। तो अब हम किधर जा रहे हैं? अभी हम यहाँ से निकल के कटरा कुशल राय निकल रहे हैं।
कटवत कुशलराय में शीश महल की हवेली है, विच इज़ द हवेली ऑफ वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लेट मुगल एम्परर। और दैट्स ऑल्सो हवेली जहाँ पे एक कॉलेज की शुरुआत हुई थी, और बहुत पॉपुलर कॉलेज है। कॉलेज क्या है वो वहीं जाकर हम लोग बताएंगे। भी नहीं आया। एक पीस पे बटर और मक्खन लगा दिएगा आप। तो इनकी खासियत ये है कि ये वाइट मक्खन निकालते हैं और बहुत प्योरिटी के साथ निकालते हैं खाना है। और उसके ऊपर ये ज़ीरा मसाला बुरकते हैं, और थोड़ा ज़ीरा और ज़ीरा भी भुना हुआ होता है, बिल्कुल पिसा हुआ होता है। तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिटी एंड हेल्थ। तो आई थिंक आज के पोल्यूशन के टाइम में ये बहुत फ़ायदा करना चाहिए। आपको पुरानी दिल्ली के अंदर जितने भी इवन फूड ऑप्शंस भी मिलेंगे, सीजनल फूड ऑप्शन, दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। राइट। मक्खन भी पेस्चराइज मक्खन नहीं है, बिल्कुल प्योर मक्खन है। ओके। हल्का सा काला नमक डाला, उसके ऊपर ज़ीरा। तकरीबन 70-80 साल तो हो गए इसको। सन 58 से। It's a very unique taste, Right. very light as well. Sheesh Mahal, and it was the Haveli of one of the Prime Minister of later Mughal, like Bahadur Shah Zafar.